جب 2000 سینٹی گریڈ والی گرمی کا یہ معاملہ ہے جس میں تم جلنا پسند نہیں کرتے، تم اپنے بال بچوں کو جلنا پسند نہیں کرتے، تو ذرا اندازہ کرو کہ جس جہنم سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے قرآن کے اندر، اس جہنم کی آگ کی گرمی 1,36,000 سینٹی گریڈ ہوگی، جو انسانوں کو جھلسا دینے والی ہوگی، جو انسانوں کو جلا دینے والی ہوگی۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین جمعہ، تعریف، توصیف، برائی، کبریائی و حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ اس کائنات کا اکیلا تنہا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے بڑے نظام کو چلانے میں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجھی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ اکیلا تنہا اس پوری کائنات کو، پورے سنسار کو چلا رہا ہے، اور اس پورے کائنات میں صرف اور صرف یہی گلیکسی، ہماری اس گلیکسی میں، ہمارے اس برہمانڈ میں جتنی سارے سیارے اور ستارے گھوم رہے ہیں، جس کا اندازہ کرنا بہت ہی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس روئے زمین پر ایک انسان کو ہم دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے نا؟ حالانکہ ہزاروں ہزار ستارے اور سیارے اس گلیکسی کے اندر چل رہے ہیں، جس کا ادراک عقل سے بالاتر ہے، اور اس میں بھی ہر سیارے اور ستارے پر اللہ کی کون کون سی مخلوق ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ کے اندر جو پہلی آیت، سورہ فاتحہ تو ہم میں سے اکثر کو معلوم ہے،
تو سورۃ الفاتحہ یہ کھولنے والی سورت ہے. قرآن کو اسی سورہ کے ذریعے سے کھولا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے. ورنہ فاتحہ 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 اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ ڈائریکٹ یہ لفظ بولنے کے بعد انسانوں کی جو عقل ہے وہ فاتحہ کی طرف چلا جاتا ہے. اب تو اندازہ سمجھ گئے ہوں گے، وہ کھانے کھلانے والے کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. حالانکہ فاتحۃ الکتاب یہ سورۃ الفاتحہ کا نام ہے، اور یہ سورہ فاتحہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کتاب کو کھولا جاتا ہے. ورنہ سورہ فاتحہ کے اور بھی بہت سارے نام. تو پہلی آیت جو ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. رب عالم نہیں کہا، کسی ایک دنیا کا تذکرہ اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں اور تمام کی تمام بڑائیاں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس عالم کے علاوہ کوئی اور بھی عالم ہے. اب جیسے مثال کے طور پر مان لیجئے عالم، اگر عالم ہی پر بات آ جائے تو کئی ایسے عالم ہیں جس کا تذکرہ یہاں کیا جا سکتا ہے. انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو عالم رحم بولا جاتا ہے. پیٹ کے اندر وہاں بھی بچہ زندہ ہوتا ہے، وہاں بھی بچہ کھاتا ہے پیتا ہے، وہاں بھی بچہ گھومتا ہے ٹہلتا ہے ہنستا ہے نا، یہ سب کچھ کرتا ہے بچہ. اور اللہ تبارک و تعالی اس ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو وہاں روزی پہنچا رہا. اللہ وہاں اس کی سارے انتظام اور انصرام فرما رہا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ وہاں اللہ سبحانہ و تعالی بچے کی آنکھیں بنا رہا ہوتا ہے، ادھر ماں کام کر رہی ہوتی ہے. بچہ کا ہاتھ پیر تیار ہو رہا ہوتا ہے، ادھر ماں تذکرہ کر رہی ہوتی ہے. تو رب العالمین ہے وہ اللہ، عالموں کا رب ہے، کارساز ہے، مربی ہے، اور تمام چیزوں کا انتظام اور انصرام کرنے والا وہ اللہ ہے جو مادر رحم کے اندر جسے عالم رحم بولتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالی اس بندے کو، اس بچے کو روزی پہنچا رہا ہے، اس کو زندہ رکھتا ہے. ایک عالم ہے یہ عالم دنیا جس میں انسان آنکھ کھولتا ہے اور اس کے بعد جو زندگی اس کی گزر جاتی ہے اس کے بعد ایک اور عالم ہے. وہ عالم برزخ ہے. قبر کی زندگی سے لے کر کے اور قیامت کے دن تک کی جو زندگی ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. برزخی زندگی میں بھی مردے ہنستے ہیں، مردے بات کرتے ہیں، مردے روتے ہیں، مردے چیختے ہیں، مردے چلاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی، لیکن مردہ کیسے ہنستا ہے، کیسے بولتا ہے، کیسے جواب دیتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. اب لوگ کہتا ہے کہ مولوی صاحب اگر مودی صاحب وہ مردے اگر سنتے نہیں ہیں تو پھر ہم لوگ سلام کیوں کرتے ہیں؟ ہم لوگ قبرستان سے گزرتے ہیں تو قبرستان سے گزرنے پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ سکھا دیا ہے. طریقہ سب آدمی کو سکھایا ہے، مسلمان کا سب آدمی کو معلوم ہونا چاہیے، ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم قبرستان سے گزرنے لگو تو پڑھو السلام علیکم اہل القبور، قبر والوں پر سلامتی ہو. ہم اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو جواب کیوں نہیں؟ اگر سنتے ہیں تو وہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہی تو مسئلہ ہے، یہی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر سنتے ہیں ویسے ہی جیسے دنیا میں سنتا تھا تو پھر جواب بھی دنیاوی انسانوں کی طرح دینا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. دنیا کے بعد جو برزخی زندگی ہے اس میں سننے کا معاملہ کیسا ہے، بولنے کا معاملہ کیسا ہے، ہنسنے کا معاملہ کیسا ہے،
है ना। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी ज्यादा बेहतर जानता है, इस पर ज्यादा कीलो काल नहीं करना चाहिए, ज्यादा कीलो काल नहीं करना चाहिए। और उसके बाद एक और जिंदगी है जिसका नाम है कयामत, आलम महशर जिसे कहा जाता है। अल्लाह कुरान में कहता है ला उक़सिमु बियौमिल क़यामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामह। पूरी सूरह क़यामा को जाकर पढ़िए। मोबाइल में तो आजकल सब कुछ देख लेते हैं आप लोग, एक एक मैसेज देख लेते हैं। क्या नहीं है सोशल मीडिया में अभी। यही तो बात है कि अभी गलत और सही की तमीज हमारे नौजवानों ने खो दिया है। एक बात याद रखिएगा, यहां उन्वान से हट करके एक मिनट की बात बोल रहा हूं। जब हम कोई चीज शेयर करते हैं, अच्छी या बुरी चीज, तो याद रखिए अगर कोई अच्छी चीज जो हम शेयर करते हैं और इससे लोगों को फायदा हो सकता है, तो उस पर जितने भी लोग अमल करेगा उस आदमी का सवाब उस आदमी को पहुंचते रहेगा, है कि नहीं। और इसी तरीका से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी आदमी ने किसी ऐसी गुमराही और बिदअत को ईजाद किया, उसके बाद उस पर अमल करने वाले जितने भी लोग होंगे उन तमाम लोगों का सजा या अजाब उसी को मिलेगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम्हारी नेकियों की फहरिस्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1000 नेकी लिख दी। मिसाल के तौर पर एक बात बता रहा हूं, 1000 नेकी तुम्हारी लिखी जा चुकी है, लेकिन जिंदगी में कभी तुमने एक गाना शेयर कर दिया था, कोई ऐसी चीज शेयर कर दी थी, तुम्हारे 1000 नेकियां थी तुम्हारे खाते के अंदर। अब मोबाइल फोन के फेसबुक पेज को देखते देखते तुम्हारे पोस्ट पर नजर पड़ी, किसी ने लाइक कर दिया और उसने भी शेयर कर दिया। लाइक किया, तुम्हारी एक नेकी कम हुई, शेयर कर दिया, तुम्हारी एक नेकी कम हो गई। अभी यह मामला हुआ ही नहीं था कि तुम्हारे दूसरे साथी ने तुम्हारे मोबाइल के फोन के अंदर तुमने जो पोस्ट किया था उसको शेयर कर दिया, उसको लाइक कर दिया, वहां तुम्हारी एक नेकियां कम हो गई। इसी तरीका से तुम्हारे 1000 नेकियां जो तुमने दुनिया के अंदर किए थे, धीरे धीरे वो सारी की सारी नेकियां खत्म हो गई, यहां तक कि तुम्हारे गुनाहों का सिलसिला भी चलता रहा। कभी तुमने सोचा ला उक़सिमु बियौमिल क़यामा, मैं कसम खाता हूं कयामत के दिन का। अल्लाह कहता है मैं कसम खाता हूं। अल्लाह ना कसम खाए तो क्या अल्लाह की बात नहीं माननी चाहिए? कसम कलाम की पुख्तगी के लिए भी आता है। अल्लाह अगर कसम खा ले तो इसका मतलब है कि बात के अंदर दम है, पावर है, इस बात को मानना ही मानना है। कसम ना भी खाता तो भी अल्लाह की बात मानने के लायक, कसम खाकर यकीन दिला रहा है कि ये हो के रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उस जमाने में कुफार और मुशरिकीन कहते कैसे होगा भाई, कैसे हो जाएगा, इंसान सड़ जाता है, गल जाता है, मिट जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कैसे हो सकता है ये? अल्लाह कहता है ला उक़सिमु बियौमिल क़यामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा। अरे हम तो इस बात पर कादिर है कि हम लोगों को कयामत के दिन जमा कर दें। बला अन नुसव्विय बनाना, और अगर लोग सोचता है कि अल्लाह कैसे पैदा करेगा, तो याद रखो बनाना, हम उसके फिंगर प्रिंट से उस इंसान को दोबारा कयामत के दिन पैदा करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे कितनी बड़ी बात है भाई, नहीं है? फिंगर प्रिंट, दुनिया के अंदर करोड़ इंसान है। पासपोर्ट जो लोग बनाते हैं तो 10वीं उंगली का फिंगर लगाते हैं, आधार कार्ड में भी लगाते हैं, और जहां भी जाते हैं तो फिंगर ही से काम चलता है आपका। जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो फिंगर। इसका मतलब है कि दुनिया में इतने सारे इंसान हैं, सारे इंसानों के चेहरे अलग, चेहरे अगर मिल भी जाए, चलने का अंदाज अलग, अंदाज अगर मिल भी जाए
बात का अंदाज अलग। अगर सारी चीजें मिल भी जाए लेकिन फिंगर मैच, अल्लाह कहता है आज से 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, बला अन नुसव्विया बनाना, हम कयामत के दिन इंसान को इस उंगली के कोण से पैदा कर देंगे। हम इस फिंगर प्रिंट के आधार पर उसको दोबारा पैदा करेंगे। इंसान गुमान करता है, तुम जो गलतियां कर रहे हो, क्या तुमको अंदाजा भी है कि तुम जो कर रहे हो कहीं तुम्हारी नेकियां को खा तो नहीं रही है? इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही होना चाहिए। तुम दुनिया में सारी चीजें सोशल मीडिया से कर रहे हो और कुरान तुम तर्जुमा के साथ पढ़ नहीं सकते, बहुत बड़ी बात है ये। सब कुछ चेक कर लेते हो, तुम अपना मैसेज पढ़ लेते हो, सारी चीजें पढ़ लेते हो, और कुरान पढ़ने में तुमको बड़ी तकलीफ होती है। बहुत सारी जगहों पर तो मौलवी साहब से कहा तुम कुरान कैसे समझोगे? कौन बता दिया है तुमको कुरान समझने की चीज है, इसको मौलवी साहब समझेंगे? ये कहां की बात आ गई भाई? मौलवी साहब समझेंगे। कुरान हुदल लिन्नासी वल बय्यिनाति मिनल हुदा, अल्लाह कहता है मैंने इस किताब को लोगों की मानवता की हिदायत के लिए पैदा किया। सिर्फ मुसलमानों की हिदायत के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंसानियत के लिए, पूरे मानव के लिए मैंने इस कुरान को दुनिया के अंदर नाजिल फरमाया है, ताकि इस किताब के जरिए से लोग सीधे मार्गदर्शन पर आए। आज कितने लोग आ रहे हैं? न मुसलमान आ रहा है। जब मुसलमान आ ही नहीं रहा है तो गैरों को कैसे कुरान पहुंचाएगा? बताइए, कैसे बताएगा कि मेरे भाइयों, मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, ये भी तुम्हारे लिए किताब है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी कुरान को नाजिल फरमाया है। हुदल लिन्नासी वल बय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरकान। ये किताब पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए, पूरे मानव के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को सही मार्गदर्शन के रूप में इस दुनिया के अंदर नाजिल फरमाया है। न मुसलमान उससे फायदा को उठा रहा है और न ही इस चीज को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मेरे नौजवान साथियों, असल आज का खिताब हमारा तुम्हारे साथ है। तुम अपने मोबाइल फोन पर चलने वाली उंगलियों के ऊपर परहेज करो और कंट्रोल करो अपनी उंगली को, कहीं कोई ऐसी गलती तुमसे न सरजद हो जाए जिससे तुम्हारी नेकियां खत्म हो जाए। मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करो और याद रखो, इस दुनियावी जिंदगी के बाद जो जिंदगी जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में कसम खाया है, पढ़ो सूरह क़यामा, मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना तर्जमा के साथ और पढ़ना। अल्लाह ताला ने फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़यामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना बल युरीदुल इंसानु लियहजुरा अमामा यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा। लोग सवाल करते हैं कयामत कब आएगी? फ़इज़ा बरिक़ल बसर व खसफ़ल क़मर व जुमियश शम्सु वल क़मर। अल्लाह कहता है कि लोग कयामत के बारे में सवाल करते हैं। फ़इज़ा बरिक़ल बसर, हालांकि कयामत का दिन जब आ जाएगा तो लोगों की आंखें पथरा जाएंगी। वह खसफल कमर, चांद और सूरज के अंदर ग्रहण लग जाएगा। वह जुमियश शम्सु वल कमर, और हम चांद को सूरज के दरमियान ले आएंगे, सूरज के सामने ले आएंगे। एक मौका ऐसा हुआ था 2009 या 11 में हुआ था, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए सिर्फ सूरज के नीचे चांद गुजर रहा था। और फिर इस सब लड़कों को ये हो सकता है कि ये बात याद हो, 10 साल 11 साल हो गया होगा, 11-12 साल, अक्सर लोगों को याद होगा। हाँ, सुबह के 8 बज रहे थे और हम भी अपनी घड़ी में देखकर उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जिसके जरिए से पेपर से मुझे मालूम हुआ था कि फला टाइम में चांद सूरज के नीचे से गुजरने वाला है। उस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। लिखने वालों ने लिखा था कि उस सुबह के 8 बजे जब सूरज आसमान के ऊपर उठता है उस वक्त सितारा दिखता है? नहीं ना दिखता है। चांद दिखता है? नहीं ना दिखता है। लेकिन जब चांद सूरज के नीचे आएगा तो दिन में ही लोग सितारे को देखेंगे। परिंदे अपने घोंसलों से निकलना शुरू कर देंगे कि आखिर ये कौन सी आफत आ गई, कौन सा अजाब आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। फ़इज़ा बरिक़ल बसर व खसफ़ल क़मर व जुमियश शम्सु वल क़मर। अल्लाह कहता है कि हम चांद और सूरज को एक साथ जमा कर देंगे। मेरे भाइयों, जब सूरज के नीचे चांद आया पूरी दुनिया के अंदर अंधेरा छा गया,
सारी लाइटें जल गई, परिंदे अपने घोंसले से निकलकर चीखों पुकार करते हुए भागते हुए नजर आए। आसमान में मैंने अपनी आंखों से सितारे को देखा। ये तो दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल के तौर पर लोगों को दिखाया, लेकिन अंदाजा करो कयामत का दिन कैसा दिन होगा। पैदा बरकल बसर व खसफल कमर व जुमिय शम्स वल कमर यकूलुल इंसानु यौमइज़िन अयना मफर। वो ऐसा दिन होगा जहां इंसान कहीं भाग भी नहीं सकता है, कहीं भाग भी नहीं सकता। कर लो जो करना है तुम्हें दुनिया में, कर लो, जैसे तैसे कर रहे हो करो, मना नहीं है। कयामत का दिन तो है, अल्लाह ने कायम ही इसीलिए किया है। और याद रखना कयामत के दिन कामयाब वो इंसान होगा। कौन सा इंसान? जिसको अल्लाह जहन्नम के आजाब से बचा देगा। मैं बहुत सारी बात यहां से छोड़ रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा पढ़ना और पढ़ करके उसके माना और तर्जुमा देखना। अगर मैं उस सूरह में पूरा अगर मैं बयान करता चला गया तो पता चलेगा कि घंटा 1.5 घंटे की तकरीर हो जाएगी। जुमा का खुतबा मुख्तसर होता है। कयामत का जो दिन होगा तो उस दिन सबसे ज्यादा कामयाब वो इंसान होगा जो कयामत में कामयाब हो गया। और कामयाब कयामत में कौन होगा? तो कयामत में कामयाब वो इंसान होगा फमन ज़ुहज़िह अनिन नार, जिसको अल्लाह जहन्नम के आजाब से बचा देगा। दुनिया में लोग समझता है कामयाब वो इंसान जो बीपीएससी में पास हुआ है, कामयाब वो इंसान जो एसटीईटी निकाल लिया है, कामयाब वो इंसान जिसके पास बैंक बैलेंस ज्यादा, कामयाब वो इंसान जो बीघा 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा 25 बीघा 50 बीघा का मालिक, कामयाब वो इंसान जिसके घर द्वार अच्छे, कामयाब वो इंसान जिसके पास गाड़ियां अच्छी। अल्लाह कहता है कामयाब ये दुनियावी जिंदगी के लिए हो सकता है, लेकिन उखरवी जिंदगी में अल्लाह की नजर में कामयाब कौन इंसान होगा? फमन ज़ुहज़िह अनिन नार, जिसको अल्लाह जहन्नम के आजाब से बचा देगा। जहन्नम के आजाब से, जहन्नम का नाम सुन के लोग समझता है कि मुली साहब सब हैं और वैसी ही बस लफ्ज है। जहन्नम वैसी है, एक मिसाल है, दिमाग जरा लगाओ तुम अपने आप पर। जिसका ईंधन अल्लाह ने फरमाया दूसरी जगह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। हाँ, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को और फिर अपने घर वालों को जहन्नम के आजाब से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर है। इंसान और पत्थर भी ईंधन हो सकता है। घर में ईंधन का जो काम होता है आप जो जानते हैं, चूल्हे पर खाना बना रहे हैं तो उसका ईंधन लकड़ी, गैस से खाना बना रहे हैं तो उसका एलपीजी, जो गैस है वो जहाज में अलग ईंधन, मोटरसाइकिल में अलग ईंधन, गाड़ियों में अलग ईंधन, इंजन और हैंड पैप में अलग ईंधन, दमकल में अलग ईंधन है कि नहीं? इसी तरीका से उस जहन्नम को जिसको अल्लाह जलाएगा उसका ईंधन क्या होगा? वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, इंसान और पत्थर उसका ईंधन होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना, अल्लाह ताला हम लोगों की हिफाजत फरमाए। इंसान और पत्थर उसका ईंधन होगा। जिस आग से बचने का हुक्म अल्लाह ने आपको भी दिया है, और आप जब बचेंगे तो आपका बाल बच्चा भी बचेगा कि नहीं? कभी उस आग की गर्मी के बारे में सोच लेना। और अल्लाह के नबी ने तो ऐसा नहीं फरमाया कि हाँ भाई जहन्नम की आग उतने गर्म है। दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी मशीनें आ गई है कि आग के टेम्परेचर को मालूम कर सकता है, पानी का टेम्परेचर मालूम हो जाता है। हाँ, आग आप दौड़ रहे हैं उसका टेम्परेचर मालूम होता है। आज जब आईपीएल शुरू होगा तब देखिएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फला गेंद फेंकता है, वो कैसे मालूम हो जाता है? वहां मशीन लगी हुई है। इसी तरीका से पानी, दुनियावी आग को भी जांचने के लिए मशीनें तैयार हो गई हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जलने वाली आग की अगर टेम्परेचर मापी जाए तो उसका सेंटीग्रेड सिर्फ मात्र 2000 सेंटीग्रेड होता है। कितना? 2000 सेंटीग्रेड।
दुनिया में जो भी चीज ईंधन के काम आ रहे हैं, जलाने के काम आते हैं, उसका ईंधन और उसके टेम्परेचर, उस आग की गर्मी सिर्फ मात्र 2000 सेंटीग्रेड है। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनियावी आग के मुकाबले में जहन्नम की आग की गर्मी 69 गुना 69% ज्यादा, गोया के 6 पर 9 से अगर भागा 69 गुना से अगर भागा दिया जाए 2000 को, तो इसका मतलब बनता है कि जहन्नम की आग की गर्मी 1,36,000 सेंटीग्रेड बन जाती। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुनिया की आग की गर्मी सिर्फ मात्र 2000 सेंटीग्रेड और जहन्नम की आग की गर्मी 69 गुना से भागा अगर दिया जाए तो 1,36,000 सेंटीग्रेड। अगर दुनियावी आग में आपका बच्चा फंस जाए, कहीं आग लग जाए, तो क्या इस बात को आप बर्दाश्त करेंगे? सारी गाड़ियां लग जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी लग जाए, नौजवान डोल लोटे से आपके घर की आग को बुझाना शुरू कर दे, लेकिन जब तक उस वक्त तक बच्चा नहीं निकल जाता तब तक आपको सुकून नहीं होता है। ये सिर्फ मात्र 2000 सेंटीग्रेड वाली आग की गर्मी का ये मामला है। जब 2000 सेंटीग्रेड वाली गर्मी का ये मामला है, जिसमें तुम जलना पसंद नहीं करते, तुम अपने बाल बच्चों को जलना पसंद नहीं करते, तो जरा अंदाजा करो कि जिस जहन्नम से अल्लाह ताला डरा रहा है कुरान के अंदर, उस जहन्नम की आग की गर्मी 1,36,000 सेंटीग्रेड होगी, जो इंसानों को झुलसा देने वाली होगी, जो इंसानों को जला देने वाली होगी। उस आग की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करोगे? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिस आदमी को अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचा दे, व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जिस आदमी को अल्लाह अपने फजल से जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे, वही आदमी सबसे ज्यादा कामयाब होगा। कामयाब समझ गए? कामयाब वो इंसान होगा जो जहन्नम से बच गया। हाँ, अब जहन्नम से बचने के तो बेशुमार रास्ते हैं। एक सुन्नत पर आप अमल कर रहे हैं, तो एक सुन्नत पर अमल करने की वजह से हो सकता है कि अल्लाह ताला को यह चीज पसंद आए कि मेरा ये महबूब मेरे महबूब के सुन्नत पर अमल करता था। हाँ, और कहीं इसी बरकत की वजह से अल्लाह ताला आपकी गलतियों को माफ फरमा दिए, कौन जानता है। इसीलिए कैसी ही छोटी हो नेकी तू उसे हल्की ना जान, रब के बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। जुमा का दिन है, मुख्तसर खुतबा है, और फिर इंशाअल्लाह रहमान कभी आने का मौका मिला तो बहुत सारी बातें आपके सामने आएगी। बहरहाल तहकीक कीजिए, पढ़िए लिखिए और गलत चीजों की तरफ ना जाइए। अपनी आखिरत बनाइए, दुनिया तो खत्म हो जाएगी, आखिरत बाकी रहेगी। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, तुम कैसे इंसान हो रे कि दुनिया को मानते हो, आखिरत की जिंदगी पर तरजीह देते हो। हालांकि अल्लाह कहता है बल आखिरत खैरुन व अबका, जबकि तुम जानते हो कि आखिरत खैर है, बेहतर है, आखिरत अच्छा है। इतना कह देता तो जवाब हो जाता कि नहीं। अगर कोई पूछ दे कि दुनिया कैसे बेहतर है, आखिरत कैसे बेहतर है दुनिया से, तो अल्लाह ने एक लफ्ज में फरमाया व अबका, आखिरत बाकी रहने वाली है, दुनिया बाकी रहने वाली नहीं है। अल्लाह तमाम मुसलमानों को नेक समझ की तौफीक अता फरमाए, नेक समझ की तौफीक अता फरमाए, दीन पर पाबंदी से अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। छोटी छोटी नेकियां छोटा समझकर मत छोड़िए, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह मुझे भी आप लोगों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।